Hello, welcome back to my channel. Our today's topic for the day is question tag. You all have heard about question tag, right? आपने सब question tag के बारे में सुना रहेगा. आज हम लोग इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं, how to form the question tag without doing any mistakes. Today we are going to see this. Okay? And one more thing, I am going to divide this topic in two parts. This will be the first part of the video, and other part of the video I'll be uploading later. So now let us see when to use question tag. Okay, first, what is this question tag? Question tag है क्या? Okay, what is this question tag? Students, question tags we use when we want to confirm something. जब भी हम लोग को किसी से कुछ confirm करना है. Okay, I'll give you an example. Second, when you agree or disagree. Okay, when you agree on something, we use question tags. All right. Now, if I give you an example, like suppose you watched a Bahubali movie. Okay, we all know it was a great movie. Now, after coming out of the theater, you expressed your feeling about the movie. Okay, how beautiful the movie was. Yes, so you were speaking about this Bahubali movie with your friends. You said, hey, what a wonderful movie it was, wasn't it? So later on, that wasn't it which you used to confirm. No, your friend will also definitely agree. He will say, yes, it was wonderful movie. So this wasn't is nothing but it is question tag. जब भी हम लोग किसी से confirm करते हैं कुछ चीज़ें, and वो कभी आता है एक question के पीछे आता है. हमेशा भी ना, अभी हमारे जो एग्जाम्पल में we were discussing about Bahubali movie, right? Yes, you said your friend that it was a wonderful movie, na? Wasn't it? So wasn't it? It was like your friend will agree. It's a way of confirming with your friend. Are you understanding? Now one more example I'll give you. Suppose you went in restaurant with your friend. आप restaurant में गए आपके friend के साथ. You ordered something, some of your favorite dish, maybe pizza, burger, anything. Now after having the pizza, you will say, wow, what a delicious pizza it was. Wasn't it? हम लोग हिंदी में कैसा है ना बोलते हैं, है ना? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? गई थी ना, है ना? So वो हिंदी में आता है ना. इंग्लिश में हम लोग कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, wasn't it, aren't it? Yes, so you were having some delicious food, maybe pizza, as I said, burger, and after having the burger, yummy burger, you expressed your feeling about the burger saying that क्या बर्गर था, मस्त था, है ना? So that in English you will say, what a delicious burger it was, wasn't it? Are you understanding? Yes. Now same way, one more example I will give you. It was raining. Okay, it's raining, okay, at your place, and one of your friend called you. बारिश हो रही है और आपके एक फ्रेंड ने आपको कॉल किया. ठीक है, तो और ये फर्स्ट बारिश है. ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट बारिश में हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं. दिस इज द फर्स्ट रेन and you are very excited. So you will say your friend, hey, बारिश हो रहा है ना, it's raining, no? So and then you will immediately follow, maybe you will, if you want to confirm, okay, you will say, isn't it? So you will say, hey Raj, it's raining, isn't it? So your friend Raj will say, yes, it's raining at my place too. So the words which you use to confirm, okay, to confirm, or you can say to agree, such type of words are called as question tag. Now why question tag? Actually tag, what is tag? First I would like to tell you about tag. Tag is a small object. Okay, tag एक small object है which is you can say object, thing, whatever, which is attached to something. टैग ऐसा कुछ चीज़ है जो किसी से अटैच है, विच इज़ अटैच्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. व्हेन यू गो टू बाई गारमेंट्स, जब भी आप ड्रेस लेने जाते हो, शर्ट्स लेने जाते हो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्मॉल हिडन टैग इनसाइड द क्लॉथ? यस, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा एक छोटा सा टैग, वो क्लॉथ का टैग रहता है, वो क्वेश्चन टैग नहीं है, दैट इज क्लॉथ टैग.
Are you understanding? Now that is something small, that a small tag which has some numbering, labeling on it, and which is attached to big piece of cloth. So tags are generally something which are attached to some big thing. Tags are some small thing which are attached to some big thing. Same way question tags are attached to question. That is why they are said as question tag. I hope you are following. So till now I told you question tag we use when in our communication, we use to confirm something, or you can say to agree. When you agree with something, you can use question tag in a sentence. और question tag किससे attach रहता है, किसके साथ रहता है? वो question के साथ रहता है. एक statement दिया रहेगा, वो statement के साथ रहेगा. Okay, followed. And हाँ, yes. So this was all about question tag. I mean, what is question tag, when to use. Now children, one more important thing I want you all to understand. Now, how to use question tag in a sentence. Okay, first I want you to remember, I want you all to know, always remember this. You will identify, what you have to do, you will identify the type of sentence. अब क्वेश्चन टैग में जब भी आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप वो सेंटेंस कौन से स्टेट में, कौन से टाइप का है वो देखोगे. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव या एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, क्या नेगेटिव. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओ माय गॉड, वी डोंट नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. इन माय प्रीवियस वीडियो, इसके पहले का वीडियो में मैंने टाइप ऑफ सेंटेंसेस सिखाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए. ओके, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मैंने 4 टाइप का बताया था, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में आता है. वो सेंटेंस जो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और जो फुल स्टॉप में एंड होता है. ठीक है, तो ये किस में आता है, ये असर्टिव सेंटेंसेस का पार्ट है. ये अलग से पार्ट नहीं है टाइप ऑफ सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ चिल्ड्रेन, अभी आपको कैसे समझना है पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है. जब भी सेंटेंस में, व्हेनेवर इन सेंटेंस देयर इज नो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स नहीं रहेगा, नो नेगेटिव वर्ड्स, देन इट इज पॉजिटिव सेंटेंस. अभी नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मतलब व्हेनेवर देयर आर नेगेटिव वर्ड्स इन द सेंटेंस, दे आर नेगेटिव सेंटेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम, टाइप ऑफ सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, यस, दिस मच डिड यू ऑल अंडरस्टैंड. अभी पॉजिटिव रहेगा, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, इसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं. इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा नेगेटिव. ओके, देन अभी उसका उल्टा, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या है. फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव. इतना बात याद रखिए. सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको समझ जाना चाहिए मुझे जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो नेगेटिव बनेगा. If the sentence is negative, the question tag will be positive. Is this much clear? Okay, I hope this much is clear. Okay, now I'll explain you about this. Before that, let us see how to what is the structure. Structure क्या है question tag का? Structure मतलब format, वो लिखा कैसे जाता है. ओके, जैसे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना. यस, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, वैसा क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या है. फर्स्ट लेट अस सी दैट, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. ओके, सी हियर. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर से समझेंगे. अ क्वेश्चन टैग कम्स आफ्टर द स्टेटमेंट. जैसे मैंने बोला कि अटैच रहता है, क्वेश्चन टैग अटैच रहता है. स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस. ओके, अ क्वेश्चन टैग कम्स आफ्टर द स्टेटमेंट. आफ्टर आप कंफर्म करने के लिए सेंटेंस के बाद ही लगाओगे, राइट. अभी नाउ सी, अभी उसका फॉर्मेट कैसा है. सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो आएगा,
उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब. नाउ डोंट वंडर व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा इज, आर, वॉज, वेयर, बहुत सारे हैं. इज, आर, वॉज, वर, देन विल. yes, these are all auxiliary verbs. okay, सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट रहेगा. अगर नाउन में दिया है, स्टेटमेंट में यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. यस, सो सब्जेक्ट अगर राज है तो यहाँ पे ही आएगा. सब्जेक्ट रानी है तो यहाँ पे शी आएगा. अगर सब्जेक्ट में ही दिया है तो ही आएगा, शी दिया है तो शी आएगा. बट यू विल नेवर यूज नाउन. हमेशा याद रखो, क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम आप कभी नाउन यूज नहीं करोगे. यू विल ऑलवेज यूज प्रोनाउन. रिमेंबर दिस. एंड आफ्टर यूजिंग प्रोनाउन यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट कॉमा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन मार्क. अभी भी आप सोचते रहोगे ये क्या है, नहीं समझ में आया. डोंट वरी, यहाँ पे हम समझेंगे. द रूम इज़ वेरी स्पेशियस. ओके, मैंने क्या बोला था आपको पिछले इसमें, दैट फर्स्ट अगर सबसे पहले क्वेश्चन टैग में हमको क्या देखना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. पॉजिटिव है क्या नेगेटिव. पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. अभी यहाँ पे द रूम इज़ वेरी स्पेशियस, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं है. नो है, नॉट है, नथिंग है, नेवर है, नहीं है. इट मीन्स दैट दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव. ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट वो लोग देते हैं, हम लोग को आगे का करना है. ओके, सो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कोमा. अभी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में डायरेक्टली नहीं लिख सकती, मुझे सोचना है क्योंकि मुझे नेगेटिव में लिखना है. ये सेंटेंस वो लोग ने पॉजिटिव में दिया है, राइट. मुझे नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा. नाउ इज का नेगेटिव क्या आएगा, इजंट, राइट. इजंट ऑपोजिट, सिंपल है चिल्ड्रन, इजंट. आई स्मॉल लिखना, ऑलवेज रिमेंबर use small letters in question tag because we are not writing it from the it's not the initial letter, starting का letter नहीं है, हम लोग बीच में यूज़ कर रहे हैं. तो isn't. अभी द रूम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट. ये सेंटेंस में रूम सब्जेक्ट है, इज़ वेरी स्पेशियस प्रेडिकेट है. अभी द रूम में नहीं लिख सकती, मैंने बोला हमको प्रोनाउन ही यूज़ करना है. अभी दो रूम के लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज़ करूँगी, इट. सिंपल. अभी लड़का लड़की तो नहीं है, वो इट है, चीज़ है. सो आई विल यूज़ इजंट इट एंड देन आई विल पुट क्वेश्चन मार्क. ऐसा बनाया जाता है. देखो, ये हुआ स्टेटमेंट, ये हुआ ऑक्सिलरी वर्ब इजंट, ये हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, ये हुआ क्वेश्चन मार्क. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग. आर यू अंडरस्टैंडिंग. यस, ये पॉजिटिव था करके क्वेश्चन टैग यहाँ पे नेगेटिव बना. इसका इजंट. Now, the room is not very spacious. Second one, the room is not very spacious. Not मतलब the statement is negative. Statement क्या है, negative. तो मुझे जो यहाँ पे question tag बनाना है वो क्या रहना चाहिए, positive, right. अभी is not का negative positive क्या बनेगा, is, right. is. और the room यहाँ पे subject है, हमको pronoun में लिखना है तो is it. देखो ना, बात करते समय आपको समझेगा. द रूम इज नॉट वेरी स्पेशियस, इज इट. अंडरस्टूड. यस, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड. ओके, सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. यहाँ पे इज नॉट था तो इज इट हुआ, यहाँ पे इज था तो इजंट हुआ. देखो, ऑपोजिट. ओके, सिंपल है, समझ में आराम से आएगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं है. चिल्ड्रन, थोड़ा और हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स चेक. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रूम. नाउ इन दिस सेंटेंस फर्स्ट लेट अस सी द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वर प्लेइंग बोला है मतलब द सेंटेंस इज पॉजिटिव. सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, राइट. एक्चुअली इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम में आपको क्या लिखना है, फिर से स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद कॉमा डालना है. नाउ आई एम राइटिंग हियर इटसेल्फ, बट आपको एग्जाम में फिर से स्टेटमेंट लिखना है. ओके, यस.
द चिल्ड्रन, अब सिर्फ एग्जाम में इतना नहीं लिख सकते, इजंट रॉन्ग मिलेगा, टीचर आपको रॉन्ग देगी, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब ही क्या है, स्टेटमेंट को अटैच है, तो वो अटैचमेंट चाहिए. ओके, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रेन. सो यहाँ पे कोमा आएगा. ओके, नाउ वर का नेगेटिव क्या आएगा, वरंट. ओके, वरंट. द चिल्ड्रन प्लूरल है, राइट. इट नहीं लिख सकती मैं, एक रहता तो इट लिखती. द चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या आएगा, वरंट दे. सिंगुलर प्लूरल, I hope you know. Still I will try to make videos on subject predicate, singular plural. Okay, yes, these are basic things of grammar. तो I hope you understood कैसे हमने वरंट दे बनाया. वर था पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. दे क्यों, क्योंकि मैं द चिल्ड्रन नहीं लिख सकती, द चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, दे. ओके, देन द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द रेन. नॉट प्लेइंग सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, राइट. तो इधर क्या आएगा, वर दे क्वेश्चन मार्क. द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, वर दे. ओके, यहाँ पे वर दे, वर नॉट था तो उससे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग वर दे. द हाउस इज क्वाइट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव. क्या आएगा, इजंट. द हाउस के लिए क्या आएगा, इट. यस, इट. इजंट इट. यस, द हाउस के लिए इट आया. इसका नेगेटिव इजंट इट. सिंपल. इट इजंट रेनिंग रेडी यट, अभी तक रेडी नहीं है. इजंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा, इज इट. यस, इट इजंट रेडी येट. इज इट. ओके, ही विल नेवर गिव अप. नेवर, ध्यान से, नेवर इज नेगेटिव वर्ड. ओके, सो ही विल नेवर इज नेगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव. क्या आएगा, विल ही. ओके, विल ही, विल नेवर, विल ही. यस, यहाँ पे ही ऑलरेडी दे तो वही लिखा, यहाँ पे इट ऑलरेडी था तो वही लिखा. लेकिन अगर नाउन में दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रोनाउन में. नेक्स्ट, दे विल गो होम सून. विल गो इज पॉजिटिव. ओके, तो विल का नेगेटिव आएगा वोंट. दे वैसे ही आएगा, वोंट दे. यस, दे विल गो होम सून, वोंट दे. ओके, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव. सो आपको ऐसे थोड़ा पता रहना चाहिए. जैसा आर का बनता है अरंट. ओके, देन डू का बनेगा डोंट. यस, देन इसका बनेगा, जस्ट नाउ वी हैव सीन, इजंट. देन वॉज का बनेगा वजंट. देन व्हाट एल्स, ऐसा बहुत सारे हैं. ओके, हैज़ का बनेगा हैजंट. ओके, विल का बनेगा वोंट. ओके, सो इस तरीके से अगर ऐसा अरंट है तो आर, डोंट है तो डू, डज का बनेगा डजंट, डजंट. देन डिड विल बिकम डिडंट. ओके, इस तरीके से. चिल्ड्रन, नाउ आई एम गिविंग यू वन, यहाँ पे एक मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगी. ओके, इफ़ आई से आई लाइक आइसक्रीम, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ. आई लाइक आइसक्रीम. नाउ यू मे बी वंडरिंग, टीचर, मैडम, देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब हियर. यस, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, इफ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, तो क्या करना है, I'll tell about this in our part 2 video. Okay, so till then stay tuned. I hope whatever we did today you all followed. Once again I'll do a quick recap. Question tag we use when we want to confirm something or when you want to agree, when you want others to agree. आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपसे एग्री करें तो आप जनरली ऐसा यूज़ करते हो. ये है स्ट्रक्चर. पहला स्टेटमेंट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क. सेकेंड थिंग मैंने बताया, अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव.
ओके और ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. Keep watching and please share with your friends. Subscribe my channel. If you like the video, please hit the like button. Okay? Thank you.